Guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss solution of two-dimensional heat equation. So two-dimensional heat equation is your curl square u upon curl x square plus curl square u upon curl y square is equal to 1 by c square curl u by curl t. Now we shall find the solution of this equation by method of separation of variables. So look how we will solve it. So our first step will be we will let the solution, that is u of x comma y comma t, we will let x x y y t t, means x is a function of x only, y is a function of y only, and t is the function of t only. And our two-dimensional equation is curl square u upon curl x square plus curl square u upon curl y square is equal to 1 by c square curl u upon curl t. Substitute the value. First we will differentiate with respect to x two times. So curl u by curl x is equal to x dash y as it is, t as it is. Curl square u by curl x square, it will be x double dash y t. Curl square u upon curl y square will be x y double dash t as it is. Curl u by curl t will be x y as it is, t dash. We'll substitute the value, we'll get x double dash y t plus x y double dash t is equal to 1 by c square x y t dash. Then we'll divide the complete equation, dividing complete equation by x y t. So we'll get x double dash upon x plus y double dash upon y is equal to t dash upon t and c square as it is. Our next step is, we know that since x comma y comma t are independent variables, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, so these terms are your independent variables. So we know that for the case k less than 0, we will only get the solution, and for the cases k greater than 0, we have seen that in one dimension we do not get the solution, so in the two dimension also will not get the solution. So basically हम यहाँ पे क्या करेंगे, directly will put the constant as minus k square. So हमने let कर लिया कि each variable is equated to some constant, let it be minus k square. Y double dash upon y आ जाएगा minus l square, because t dash upon c square t is sum of these both terms. So this will be equal to minus k square plus l square. So from this equation we'll get d square x upon dx square is equal to minus k square x. We'll get d square x upon dx square plus k square x is equal to 0. From here we'll write the auxiliary equation m square plus k square is equal to 0. So we'll get m is equal to plus minus k eta. So we'll get the value of x is c1 cos kx plus c2 sin kx. Similarly for this term, we'll get d square y upon dy square plus l square y is equal to 0. So यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आने के पहले देखिए स्टेप बढ़ा लेते हैं, उधर माइनस में लिखते हैं, फिर इसको यहाँ पे प्लस में ले आते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. From here the auxiliary equation will be m square plus l square is equal to 0. So m की वैल्यू अगेन दो आ जाएंगी प्लस माइनस एल आइटा. सो y की वैल्यू आ जाएगी c3 cos ly प्लस c4 sin ly. नाउ इन द थर्ड केस यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू. सो हेयर ऑल्सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, विल गेट dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर c स्क्वायर t. सो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन dt प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे स्टेप क्या रहेगा, dt एज इट इज अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डी टी. बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट log t इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर टी प्लस कॉन्स्टेंट को लेट कर लिया log ऑफ c5. सो यहाँ से हमारे पास log ऑफ
टी माइनस log ऑफ C5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर C स्क्वायर टी से आ जाएगा log m माइनस n इज log ऑफ m बाय n, सो विल गेट log ऑफ t अपॉन C5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर C स्क्वायर टी. सो यहाँ से आ जाएगा t डिवाइडेड बाय C5 t अपॉन C5 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर C स्क्वायर टी. सो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा C5, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो t इज इक्वल टू C5 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर C स्क्वायर टी. सो x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, t की वैल्यू आ चुकी है. अब सॉल्यूशन हम लिखते हैं. सो वी विल गेट द सॉल्यूशन u ऑफ x y t इज इक्वल टू C1 cos kx. सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन जो हमने लेट किया था वो था प्रोडक्ट ऑफ x y t. cos kx प्लस C2 sin kx इंटू C3 cos ly प्लस C4 sin ly इंटू C5 e रेज टू पावर माइनस ऑफ k square plus L square into C square into t. So this is the solution of the given equation. Now our next article will be solution of this according to the boundary conditions. Next we have solution of two-dimensional heat equation satisfying the boundary condition. So to solve the two-dimensional heat equation which is given to you, this boundary condition are given: u of 0 yt and u of a yt and u of x0t and u of xbt are 0 and the initial condition u of xy0 is equal to fx. या फिर हमारे पास कंडीशन और करके क्या आ सकती है, टू फाइंड द टेम्परेचर एट अ पॉइंट, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट अ पॉइंट ऑफ अ थिन ट्रायंगुलर प्लेट whose surface is impervious to heat flow. impervious means impenetrable, means उससे हीट फ्लो नहीं कर सकती बाहर. सो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है, एजेस आपको गिवन है x इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस लाइन, x इज इक्वल टू a, दिस लाइन, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b आर कैप्ड एट 0 टेम्परेचर. सो ये फोर साइड्स हमारे पास टेम्परेचर 0 पे गिवन है एंड इनिशियल टेम्परेचर एट t इज इक्वल टू 0 इज f ऑफ x. सो यही कंडीशन आपको गिवन है. सो द टेम्परेचर दिस एंड द टाइम t is governed by two dimensional heat equation. So ये two dimensional heat equation को satisfy करेगा. सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया था वही लिखना दोबारा एंड उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस को पुट करना. तो ये सॉल्यूशन था हमारे पास. तो देखिए यहाँ तक हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन करने तक बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे अब क्या किया, C5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. जब C5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किस टाइप से मल्टीप्लाई करना है, इस C1 के साथ एंड C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हमारे पास A1 आ जाएगा एंड A2 आ जाएगा, यहाँ पे A3 एंड A4 आ जाएगा. These are new constant. Now these are the boundary condition given to you and this is the initial condition. So now we'll put first condition हम put करेंगे u of 0 y t. So now we'll put 0. So cos 0 is 1, so we'll get A1. This term will be 0 and this value is given to you 0. So from here we will get A1 as 0. नेक्स्ट कंडीशन पुट करने से पहले हमारे पास A1 0 आ चुका है, सो न्यू सॉल्यूशन आ चुका है. A1 हटने के बाद A2 sin kx, A3 cos ly, A4 sin ly e रेज टू पावर माइनस k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर C स्क्वायर t. नाउ विल पुट द नेक्स्ट कंडीशन u of a y t, so we'll get A2 sin ka, A3 cos ly plus A4 sin ly e raised to power this. So now this is equal to 0. From here we'll get the two values again. A2 is 0 or sin k is a is 0. So A2 cannot be 0, otherwise we'll get a trivial solution. So sin ka is 0. So means ka is equal to m pi. If ka is m pi, so we'll get k is equal to m pi by a. Now similarly next condition जब हम यूज करेंगे we'll get A3 0 and L की वैल्यू आ जाएगी n pi by b. So इक्वेशन जो है हमारी इस टाइप से रेड्यूस हो जाएगी. ये कंडीशंस कौन सी पुट की गई हैं, b वाली, तो y के अंदर हम पुट करेंगे. सो ये हमारे पास आ चुका है वैल्यू यहाँ पे. सो नाउ ये जो हमारे पास p कांस्टेंट होगा उसको हमने इस कांस्टेंट को लेट कर लिया p, जो हेडिंग के अंदर जब हम यहाँ पे माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जब k की वैल्यू पुट करेंगे एंड जब L की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए इस इक्वेशन में e की पावर यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, सो ये कांस्टेंट आएगा, इसको हमने लेट कर लिया p. सो e रेज़ टू पावर माइनस p स्क्वायर t.
सो नाउ बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इसको समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एम एन साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन एन पाई वाई बाई बी ई रेज़ टू पावर माइनस बी स्क्वायर टी। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड जो भी गिवन कॉफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये जो है इसमें कुछ डायरेक्टली लिखा हुआ है, इससे पहले एक सॉल्व करेंगे हम, वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है और एक कंडीशन आपको गिवन है ये। सो इस कंडीशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं, विल गेट u ऑफ एक्स वाई 0 विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पुट करते आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a m n साइन m पाई x अपॉन a साइन n पाई y अपॉन b। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो जो भी राइट हैंड साइड में गिवन होता है इसको हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स विल मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ m पाई x बाई a साइन ऑफ n पाई y बाई b एंड विल इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 टू a, क्योंकि हमने कंडीशन पुट की थी, अगर आपको इनिशियल कंडीशन थी 0 पे और a पे और y की 0 से b। dx राइट हैंड साइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन a ऑफ m n डबल इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू a y फ्रॉम 0 टू b साइन m पाई x बाई a साइन n पाई y बाई b मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा dx dy। जब हम इस कंप्लीट पार्ट को सॉल्व करेंगे ए एम एन एस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी बाई 4। अगर सिंगल होता था तो 1 डायमेंशन में फाइंड आउट किया था ए बाई 2 आ रहा था, यहाँ पे बी बाई 2 भी आ जाएगा तो बी बाई 4 बन जाएगा। दैट इज़ ये हमारे पास आ रहा है। सो हमारे पास क्या आ चुकी इक्वेशन यहाँ पे, देखिए क्या आएगी, एक्स फ्रॉम 0 टू ए वाई फ्रॉम 0 टू बी एफ ऑफ एक्स वाई साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन n पाई y बाई बी dx dy भी आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू a m n a b अपॉन 4। बस आपको यहाँ से हटा के इसको यहाँ लिखना है, इट विल कम 4 बाई ए बी। तो यही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिखी गई है एज गिवन बाय द रिमार्क, ऐसा कुछ मेंशन है साइड में, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इसकी बेसिस पे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 3, सॉल्व द इक्वेशन गिवन। कंडीशन क्या है, देखिए वहाँ पे क्या था, 0 था, यहाँ पे a था, यहाँ 0 था, यहाँ b था, यहाँ दोनों पे पाई गिवन है, मीन्स रेंज हो जाएगी 0 से पाई 0 से पाई। इन सभी कंडीशन पे 0 गिवन है एंड यहाँ पे फंक्शन गिवन है एक्स वाई पाई माइनस एक्स पाई माइनस वाई। देखिए फर्स्ट हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा सॉल्यूशन ऑब्टेन करने तक, उसके बाद a1 a2 a3 जैसे मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन में बताया, फिर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लिखी हुई हैं, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट हम पुट करते हैं u ऑफ 0 बाई टी। तो देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में x की जगह 0, तो ये आ जाएगा c1 और ये 0 बन जाएगी टर्म, तो यहाँ पे a1 आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया गया है, यहाँ पे a1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास a1 0 एंड ये टर्म 0 हो नहीं सकती। सिमिलरली नेक्स्ट a1 0 पुट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन ये ऑब्टेन हो चुका है। उसके बाद हम पाई पुट करेंगे, सो a2 यहाँ से 0 नहीं हो सकता, सो यहाँ से k पाई की वैल्यू 0 होगी, k पाई इज इक्वल टू m पाई, सो यहाँ से k इज इक्वल टू m। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन में से यहाँ पे a1 0 था, यहाँ पे a3 0 आ जाएगा y के केस में एंड l की वैल्यू आ जाएगी n। पुट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ चुका है ये पार्ट। तो इसके बाद हम लिखेंगे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन किस टाइप से, समेशन फॉर्म में, जो भी आपकी स्टेटमेंट गिवन है उसको लिख लिया। नाउ एट t इज इक्वल टू 0 गिवन कंडीशन पुट करेंगे, सो t इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा a m n साइन एम एक्स साइन एन वाई, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है वो आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए एम एन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ए एम एन की वैल्यू डिटरमाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे आता है 4 अपॉन ए बी आता है, तो ए बी की बजाय यहाँ पे पाई है क्योंकि लिमिट 0 से पाई जाएंगी, सो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होता है, जो भी टर्म गिवन होती है इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, dx dy इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव देखिए इसमें अलग अलग किया है, पहले इसको x वाला पार्ट सेपरेट एंड y वाला पार्ट सेपरेट, फिर x वाले पार्ट का इसने इंटीग्रेशन सेपरेटली परफॉर्म किया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अप टू सो ऑन, सो फिर लिमिट्स पुट कर दी 0 से पाई।
सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। अब सिमिलरली इसे सेकेंड केस करके दिखाए, क्योंकि पैरेलली रन करेगा, m की जगह सिंपली n आ जाएगा। सो ये am की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू, और हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। सो बाय दिस योर 2-dimensional टॉपिक इज completed. In the next video we'll start Laplace equation. Till then, thank you.